ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب موچی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں میں اس موچی کو کوئی کام نہ ملتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچا تھا کہ وہ کوئی اناج خرید سکے۔ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھ کر موچی نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سے بولا، اب مجھے اور زیادہ یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، مجھے اپنی قسمت بڑے شہر میں آزمانی چاہیے، شاید مجھے وہاں پر کوئی اچھا کام مل سکے اور میں تم لوگوں کی بہتر کفالت کر سکوں۔ یہ بول کر وہ موچی ایک بڑے شہر کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے وہ غریب موچی ایک بڑے شہر میں جا پہنچا۔ گلی گلی گھومتے وہ یہ آواز بھی لگاتا جا رہا تھا، نئے جوتے بنوا لو، نئے جوتے، یا اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح بنوا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ پھر اس شہر کے گلی گلی میں گھوما اور ساتھ میں آوازیں لگاتا رہا، نئے جوتے بنوا لو، نئے جوتے بنوا لو، یا اپنے پرانے جوتوں کو نئے جوتے بنوا لو۔ اس کی یہ آواز سن کر ایک خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی اور بولی، ارے موچی بائی، ذرا سننا، یہ میرے جوتوں کی ذرا مرمت تو کر دو۔ جی جی ضرور محترمہ۔ وہ غریب موچی دروازے کے باہر بیٹھا اور اس نے اس عورت کے جوتے سل دیے۔ یہ لیجئے محترمہ، آپ کے جوتے بالکل تیار ہیں۔ کتنے پیسے ہوئے بھیا؟ 1 چاندی کا سکہ محترمہ۔ اچھا تو یہ لو۔ اس نے اس عورت سے پیسے لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اگلی گلی میں داخل ہوا، ایک اور عورت نے اسے آواز لگائی اور اسے کچھ جوتے مرمت کرنے کے لیے دیے۔ بھیا موچی، یہ میرے پاس کچھ جوتے ہیں، مہربانی کر کے کیا آپ ان کی مرمت کر سکتے ہیں؟ جی جی کیوں نہیں، لائی دیجئے محترمہ۔ موچی نے ان تمام جوتوں کی مرمت کی، پیسہ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ چلتے چلتے موچی اپنے آپ سے کہنے لگا، آج میں نے کافی پیسہ کما لیا، اگر میں ایسے ہی پیسہ کماتا رہا تو جلد ہی میرے پاس اتنے پیسے تو اکٹھے ہو ہی جائیں گے کہ میں اپنا ایک گدھا خرید سکوں گا۔ اس نے بہت محنت سے کام کیا اور چند ہی دنوں میں اس نے 5 سونے کے سکے کما لیے۔ ان 2 سونے کے سکوں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور گھر واپس جانے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے اپنا سارا سامان باندھا، گدھے پر رکھا اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ چلتے چلتے اسے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ جنگل میں چلتے ہوئے ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی طرف آتے ہوئے ایک چوروں کا گروہ دیکھا۔ ان چوروں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ موچی دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا خدا مجھے ان چوروں سے بچا لے، اگر ان لوگوں نے میرے سارے پیسے مجھ سے چھین لیے تو میں پھر سے غریب ہو جاؤں گا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ موچی بہت ہی عقل مند تھا۔ جلد ہی اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے ایک سونے کا سکہ اپنے گدھے کے گلے میں باندھ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ چوروں نے اسے راستے میں ہی پکڑ لیا اور بولے، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس فوراً ہمیں دے دو، اپنا سارا پیسہ ہمارے حوالے کر دو، جلدی کرو نہیں تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ سن کر غریب موچی بولا، سنو بھائی، میں ایک غریب موچی ہوں، میرے پاس اس گدھے کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھے جانے دو۔ ابھی وہ موچی یہ بول ہی رہا تھا کہ اس کے گدھے نے سر ہلانا شروع کر دیا۔ اس کے سر ہلانے سے ہی وہ سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ تم تو کہہ رہے تھے تم ایک غریب آدمی ہو، تو تمہیں یہ سونے کا سکہ کہاں سے ملا؟ جلدی سے بتاؤ مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ یہ بولتے ہی اس چور نے اس غریب موچی کو مارنا شروع کر دیا۔ ارے رکو بھائی، میری بات تو سنو۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی چور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو موچی بولنا شروع ہوا، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو میرا یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے، اسی طرح مجھے سارا پیسہ ملا۔ یہ سن کر وہ چور بولا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ گدھا مجھے بیچنا ہوگا، پھر ہی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، اگر میں اس گدھے کو بیچ دوں گا تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ سنتے ہی وہ چور فوراً بولا، ہم تمہیں اس گدھے کے بدلے میں 50 سونے کے سکے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو
तो मैं इस गधे को बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना इस गधे को तुम सब लोग बारी बारी अपने साथ रखना, वरना तुम लोग पैसे के लिए लड़ते रह जाओगे। ये सुनते ही उन चोरों के सरदार ने मोची को 50 सोने के सिक्के दिए। मोची वो सोने के सिक्के लेकर घर वापिस आ गया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले हैं। उस पैसे से उसने अपने लिए एक खूबसूरत घर बनवाया और एक पोल्ट्री फार्म खोला। इसी दौरान वो चोरों का गिरोह भी अपने अड्डे पर जा पहुंचा, उस गधे को साथ लेकर। वहां चोरों के सरदार ने उन सब से कहा, इस गिरोह का सरदार होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार का हुक्म माना और चोरों का सरदार उस रात गधे के साथ अस्तबल में सोया। ख्वाब में भी वो अपने आप को सोने के सिक्कों में गिरा हुआ पा रहा था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा वहाँ पर तो कोई सोने का सिक्का नहीं था। उसने पूरे अस्तबल को छान मारा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई सोने का सिक्का ना मिला। वो समझ गया कि उस मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इस दौरान तमाम चोर अंदर आ गए और अपने सरदार से पूछने लगे, सरदार क्या आपको सोना मिला? हमें जल्दी से बताइए कि आपको कितने सोने के सिक्के मिले। ये सुनते ही सरदार गुस्से से बोला, अहमको, तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब तुम बारी बारी इस गधे को अपने साथ रखोगे। सरदार ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सरदार ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई ही उससे कोई गलती तो नहीं हुई। एक एक करके सभी चोरों ने उस गधे को अपने साथ रखा, लेकिन किसी को भी कुछ ना मिला। सरदार समेत वो तमाम चोर समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। सरदार अपने साथियों से बोला, उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया, हम उसे उसके किए की सजा तो जरूर देंगे। जी सरदार, उसने हमसे इस मामूली गधे के बदले में पूरे 50 सोने के सिक्के भी ले लिए। हम उसे अपना पैसा जरूर वापस लेकर रहेंगे और जो उसने हमसे धोखा किया है उसे उसकी सजा भी देंगे। हाँ हाँ, चलो चलें। सरदार अपने साथियों को लेकर मोची के घर की तरफ चल पड़ा। मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। जब उसने चोरों को सरदार समेत अपने घर की तरफ बढ़ते देखा तो फौरन घर की तरफ भाग पड़ा। वो फौरन अपने घर के अंदर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, गौर से सुनो, जब वो चोर यहाँ आए और मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बताना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, फिर हमारे कुत्ते मोती को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ये कहकर वो अपने घर के पीछे ही छुप गया। कुछ देर के बाद वो चोर उसके घर में आ पहुँचे। वो मोची कहाँ है? उसे जल्दी से बुलाओ, हमें उससे कुछ बात करनी है। वो खेतों में काम कर रहे हैं, मैं अपने कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। मोची की बीवी ने सरदार को जवाब दिया, मोती मोती जल्दी से यहाँ आओ, जाओ और अपने मालिक को बुला कर लाओ, उनसे कहो कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये सब क्या है? चोरों के सरदार ने हैरान होते हुए पूछा, क्या ये कुत्ता तुम्हारे शोहर को यहाँ पर ले आएगा? जरूर, वो हर बात समझता है। जब भी मुझे कोई काम होता है तो मैं मोती को ही भेजती हूँ खेतों पर और मोती मेरा पैगाम उन्हें दे देता है। अभी चोरों का सरदार ये बात कर ही रहा था कि मोची वहाँ पर आ पहुँचा। ओह अच्छा, तो ये आप हैं। मोती ने मुझे बताया कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमसे झूठ बोला। चोरों का सरदार मोची को देखकर गुस्से से बोला। मोची फौरन बोला, जनाब गुस्सा मत होइए, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ उसी गधे की वजह से ही है। ठीक है, हम तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना ये कुत्ता हमें बेचना होगा। ये सुनकर मोची फौरन बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। हम इस कुत्ते के बदले में तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची राजी हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने अपने साथ मोती को लिया और वहाँ से चले गए। जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुँचे तो चोरों के सरदार ने बोला कि इस कुत्ते को मैं अपने पास रखूंगा। दूसरों ने अपने सरदार का हुक्म माना और वहाँ से चले गए। सरदार ने अपने बेटे गुड्डू को बुलाया
और कहा, सुनो गुड्डू, मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछने के लिए आए तो तुम मुझे बुलाने के लिए मोती को भेज देना। जी ठीक है अब्बा, गुड्डू ने अपने बाप को जवाब देते हुए कहा। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया और उसने आकर उस सरदार की बेटी से कहा कि बेटा अपने अब्बा को बुलाओ। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं फौरन उन्हें बुलाने का कहती हूँ। ये कहकर गुड्डू ने मोती को कहा, मोती जाओ अब्बा को बुला लाओ, जाओ अब्बा से कहो कि कोई यहाँ आया है उनसे मिलने के लिए। मोती सरदार के घर से भागा। बजाय सरदार के पास जाने के मोती मोची के घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। जब सरदार घर वापस आया तो उसने देखा मोती वहाँ नहीं था। वो समझ गया कि मोती यकीनन अपने मालिक के पास वापस चला गया होगा, तो वो उसी वक्त ही मोची के घर चला गया और बोला, सुनो, क्या मोती तुम्हारे घर आया है? जी जी जनाब, वो यही है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। उसे थोड़ा सा वक्त दें और देखिएगा, आखिरकार वो आपको अपना मालिक तस्लीम कर ही लेगा। सरदार मोती को वापस ले गया और अगले दिन मोती को अपने एक साथी को दे दिया। मोती एक एक करके तमाम चोरों के साथ रहा, लेकिन हर बार वो मोची के पास वापस आ जाता। वो तमाम समझ गए कि एक बार फिर उस मोची ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और सरदार बोला, साथियों, इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। इस दफा तो मैं उस मोची को सबक सिखा के ही रहूंगा। जब वो मोची के घर पहुँचे, इस दफा उन्होंने मोची की तमाम दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और मोची को एक बोरे में डाला और उसे अपने साथ लेकर चल पड़े उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में लेटा रहा। चलते चलते चोरों में से एक चोर ने कहा, सरदार, बहुत गर्मी है और हम बहुत थक चुके हैं, क्यों ना कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। उन्होंने उस बोरे को एक दरख्त के नीचे रखा और खुद थोड़ी दूर दरख्तों के झुंड में जाकर बैठ गए। एक चरवाहा अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही इस मोची ने बकरियों की आवाज सुनी तो मोची को एक तरकीब सूझी और उसने बुलंद आवाज में चीखना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। चरवाहे ने मोची की आवाज सुन ली और वो उस बोरे की जानिब आया। बोरे के पास पहुंचकर उस चरवाहे ने पूछा, अरे ओ, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें इस बोरे में बंद किया है? वो मेरा निकाह बादशाह की बेटी से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्यों दोस्त, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बजाय इनकार करने के बहुत ही खुश होता। अगर ऐसा है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में बंद कर देता हूँ। तुम जाओ और जाकर शहजादी से शादी कर लो। सचमुच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बेशक, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा। चरवाहे ने मोची को उस बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया। मोची ने उसे बांध दिया और उसकी बकरियों के रेवड़ को लेकर वहाँ से चला गया। आराम करने के बाद चोर वापिस बोरे के पास आए, बोरे को अपने साथ लिया और अपने ठिकाने पर आ गए। सरदार बोला, क्यों ना इसे कीचड़ में फेंक दें, फिर इसे पता चलेगा कि धोखा कैसे देते हैं। चोरों ने उस बोरे को उठाकर कीचड़ में फेंक दिया और खुद हंसते हुए वहाँ से चले गए। वापिस आते हुए उन्होंने मोची को सड़क से आते हुए देखा और वो हैरान रह गए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस कीचड़ के नीचे एक जादुई जगह थी जहाँ पर बहुत सारा सोना था। उस सोने की ये बकरियाँ रखवाली किया करती हैं। इनकी मदद से ही मैं बाहर आया हूँ और अपने साथ कुछ सोना भी लाया हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमें भी फौरन उस जगह पर लेकर चलो। उस सोने के असल हकदार तो हम हैं। खबरदार, उस सोने पर अगर तुमने नजर भी डाली तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। चोरों के सरदार ने मोची से कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही असरार कर रहे हो तो चलो। चोरों का गिरोह खुशी खुशी मोची के साथ उस जगह पर पहुंचा। अगर तुम लोगों को सोना चाहिए तो तुम्हें अपने आप को बोरे में बंद करना होगा। ये सुनकर सभी चोरों ने अपने आप को बोरों में बंद कर लिया। मोची ने एक एक करके तमाम बोरों को कीचड़ में फेंक दिया और फिर उन बोरों पर उन बकरियों को छोड़ दिया। ओ, इस मोची ने फिर हमें धोखा दे दिया और हमें बेवकूफ बना दिया। अरे मोची भाई, हमें माफ कर दो, अब हम तुम्हें मजीद परेशान नहीं करेंगे। हमें अकेले इस हालत में छोड़कर मत जाओ, मेहरबानी करके हमें बाहर निकालो। चोर चीखते रहे और बकरियां
उन पर उछलती कूदती रहीं। ये देखकर मोची हंसा और वापस अपने घर चला गया। इसके बाद उन चोरों ने उस मोची को दोबारा कभी तंग नहीं किया और वो मोची अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगा।